Yes, very good morning all. How are you all? All happy go lucky? Yes, fine. Participants, please keep yourself on mute. Yes, everyone, how are you all? Good morning. We'll continue with a new topic. You'll enjoy this topic if you interact. अगर मैं ही खाली बोलने वाली हूँ तो मजा नहीं है. आप लोग साथ में मेरे बोलोगे तो there is lot of enjoyment that we'll have in this chapter. Rahul, I'm always must. I keep myself always happy. Chalo, can we start? So yesterday we talked about expenditure. What is expenditure? I explained you expenditure means purchase of any goods or services, acquisition of any asset, disbursement or payment of any liability amount to expenditure. Can you all give me examples of expenditure in business? Can you all give me examples of expenditure in business? Yes, very good. Depend advertisement. ये दो टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर में हम बाद में आते हैं. पहले मुझे एक्सपेंडिचर्स के एग्जांपल्स दो. You all can unmute yourself and answer. आज क्यों इतने कम पार्टिसिपेंट है? Why so less today? Number of students. Why there are so less students today? चलो advertisement. Now let me write down advertisement expenditures that you have already seen or already understood. Expenditures. I'm making a table. आप लोग जो जो एक्सपेंडिचर मुझे बोलोगे वो मैं उस टेबल में डालती जाऊंगी. ठीक है. पहला कॉलम ब्लैंक है, उसको मैं वैसे ही रखती हूँ. एडवर्टाइजमेंट. ओके. किसी ने बोला प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस. करेक्ट. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. Rahul said printing and stationery. Yes, let us interact fast. Expenditure means outflow of cash. खर्चा होता है. ये दीपेन कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? मुझे कुछ बताओगे क्या? परचेज ऑफ मशीनरी. परचेज ऑफ मशीनरी. ओके. दीपेन ने चाय ज्यादा पिए, फटाफट आंसर आ रहे हैं. गुड. चलो. You all don't know insurance. Okay. Very good. What else? बिजनेस में एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं? जल्दी बोलो. You all know बिजनेस के एक्सपेंडिचर्स क्या क्या है? सैलरी. Yes, salary. Very good. आप लोग अनम्यूट करके बोलना चाहते हो तो you can unmute yourself and also say. Yes, salary लिखा. और postage and telegram. Very nice. Postage and telegram. Okay. Taxes. Taxes paid. Correct. Yes. What else? Deepen capital expenditure are expenses done to maintain assets of business. ये आंसर गलत है. Rent. Stationery. क्या क्या? Stationery. Stationery. ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय किसी ने चैट बॉक्स पे डाला है तो आई एम एडिंग दैट. ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय. Rent. स्टेशनरी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. समथिंग एल्स. इंटरेस्ट पेड. defective parts. इंटरेस्ट हाँ पेड. वही होता है. Replacement of defective parts. Rent भी होता है. में बहुत आवाज है. सब लोग and put it on the chat box. That is better. Interest paid. Yes. Interest paid के बाद क्या आएगा? Freight. Replacement of defective part. Replacement of defective part of machinery is nothing but repairs. उसको हम repairs भी बोल सकते हैं. Furniture. Replacement
ऑफ डिफेक्टिव पार्ट तभी होता है जब हम रिपेयर्स करते हैं, तो कमीशन पेड, वेरी गुड. Royalty. रॉयल्टीज, यस, वेरी नाइस. सैलरी ऑलरेडी लिख चुके हैं. वेजेस, Outstanding expenses. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मींस पेमेंट नहीं हुआ है ना. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि पेमेंट नहीं हुआ है. अगर पेमेंट किया ही नहीं है तो वो मैंने तो यहाँ पे क्या पूछा, जो पेमेंट किया है वो बोलो. तो आउटस्टैंडिंग मींस यू हैव नॉट पेड, तो वो तो नहीं आएगा. लीगल फीस, यस, वेरी गुड. Interest on loan. इंटरेस्ट पेड लिखा मैंने शायद, ये देखो, इंटरेस्ट पेड आई हैव ऑलरेडी रिटन. यस, व्हाट एल्स. ऑक्ट्राई किसी ने डाला है चैट बॉक्स पे. ऑडिट Furniture. फीस डाला है. एक मिनट ना. ऑक्ट्राई, ऑडिट फीस. पेमेंट टू क्रेडिटर्स किसी ने लिखा है, वेरी नाइस. पेमेंट टू creditors, very good. Yes, what else. Administrative expenses, very good. Administrative expenses में सारे ऑफिस expenses आ गए. ओके, आप लोगों ने मुझे एक साइड पे बहुत सारे एक्सपेंसेस बताए, बट एक साइड मेरा पूरा खाली है. चलो ये खाली पार्ट मैं भरती हूँ. Import duty on purchase of raw material. Purchase furniture. एक मिनट. एक परचेज फर्नीचर, परचेज एनी एसेट. फर्नीचर हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ हो सकता है. इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, सपना. इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज एन इनकम. मैं यहाँ पे एक्सपेंसेस की बात कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग ऑल अबाउट एक्सपेंसेस. कस्टम ड्यूटी लिखा ना मैंने अभी. इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी मीन्स वन एंड द सेम थिंग. देखो, आपने ये सारे एग्जाम्पल्स जो मुझे दिए ना, दिस आर ऑल रिलेटेड टू सर्विसेज. सर्विसेज जो जो एक्वायर किए उसके एक्सपेंसेस आपने मेरे को बताया. दूसरा आपने मुझे बताया परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर विच इज एक्विजिशन ऑफ एसेट. आपने पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी का एक भी एग्जाम्पल नहीं दिया. You have not given me one example also for payment of liability, like bills payable paid. Okay, honored bills payable. अब मैं बोलती हूँ पेमेंट ऑफ या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. इसका मीनिंग आपको पता है या नहीं मालूम नहीं मुझे, मैं बताती हूँ आपको. building. Redemption of debentures. Payment of bank, repayment of bank loan. अभी मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताती हूँ जो आप लोगों ने किए हैं. बट लीगल फीस, लीगल फीस. Provided. अपने आप को म्यूट करो. लीगल फीस पेड ऑन एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी. Wages paid on installation of machinery. Petrol driven engine replaced by CNG. Sitting capacity of cinema hall
is increased. Extension of building. अब मैंने बहुत सारे एक्सपेंसेस अभी लिख दिए. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. ठीक है, सब्सक्रिप्शन है ना योगिता. सब्सक्रिप्शन मींस जब आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो इसमें एक्सपेंस नहीं होता है, इसमें इनकम होता है. ओके, नाउ I'll identify this expenses. अब इन expenses की मैं क्वालिटी समझने की कोशिश करती हूँ. I will try to identify characteristics of this expenses. अभी एडवर्टाइजमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, सैलरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टैक्सेस, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, ये सारे एक्सपेंसेस जो मैंने ये फर्स्ट कॉलम में लिखे, ये सारे कहाँ आते हैं? Where does redemption of preference shares का मतलब क्या होता है? देखो, कंपनी कलेक्ट कैपिटल बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. करेक्ट. इक्विटी शेयर्स आर इररिडीमेबल. आप इक्विटी शेयर्स से जो भी पैसा कलेक्ट करते हो वो कभी भी वापस नहीं करते हो. इररिडीमेबल. यू डोंट पे बैक दिस अमाउंट. विशाल मड़ीवाल, कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट. We don't repay, but redemption of preference shares means जब आप preference shares issue करके capital collect करते हो, then in that case you repay that amount today or tomorrow. आप issue के time पे ही बोल देते हो कि 10 साल के बाद ये capital का amount वापस कर दिया जाएगा. repayment. okay, so when you repay this amount, redemption is an expenditure. आप वापस कर रहे हो पैसा, तो आपने जो पहले पैसा कलेक्ट किया था आज वो वापस जा रहा है, तो there is an outflow of cash. लेकिन ये कभी होता है 10 साल के बाद, 15 साल के बाद. आपने अगर 2020 में कलेक्ट किया पैसा तो आप 2025 में या 2030 में रिटर्न करोगे, ऐसा होता है. मीन्स yes, we have to repay the amount to its owners. correct. yes, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. आई होप सो आप सबको डिबेंचर्स मालूम होगा. डिबेंचर इज अ लोन टेकन. डिबेंचर इज अ लोन टेकन विच इज एक्नॉलेज्ड बाय इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट कॉल्ड एज डिबेंचर्स. जब आप लोन लेते हो बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, तो डिबेंचर इज नथिंग बट एक एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट. आप एक सर्टिफिकेट देते हो कि आपने ये पर्सन से इतना लोन लिया है, और उसको भी एक फिक्स पीरियड के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद रिटर्न करना पड़ता है. ओके, नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड ये जो एक्सपेंसेस मैंने फर्स्ट कॉलम में लिखे हैं, दिस इज माय फर्स्ट कॉलम, उसकी कोई आप क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हो क्या? ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकेंड कॉलम है, तो आप मुझे इस दोनों कॉलम की पिक्यूलैरिटी बताओगे क्या? कैन यू टेल मी व्हाट इज द पिक्यूलैरिटी ऑफ दिस कॉलम? yes, first column की peculiarity क्या है? what are the characteristics of the item that you have written in first column? फर्स्ट कॉलम में राहुल से फर्स्ट कॉलम में जो भी है वो एक्सपेंसेस है, तो सेकेंड कॉलम में जो है वो भी तो एक्सपेंसेस है. जब आप मशीनरी परचेस करोगे तो खर्चा ही होगा ना, फर्नीचर परचेस करोगे तो भी खर्चा ही होगा, पैसा जाएगा. जब आप डिबेंचर्स रिडीम करोगे तो भी पैसा जाएगा. तो दीज आर ऑल एक्सपेंडिचर्स. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर? वन साइड में शॉर्टकट यूज किया और दूसरी साइड में लॉन्ग कट. मतलब ये शॉर्टकट और लॉन्ग कट मैंने कभी नहीं पढ़ा है किसी को. बोलो तो शॉर्टकट और लॉन्ग कट क्या होता है? What is shortcut and long cut? मैम इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, उसमें फुल फॉर्म में लिखा है कि पेट्रोल, उसमें अलग, इसमें पूरे डिटेल से लिखा है, इसमें खाली एक चीज बताया है डायरेक्ट शॉर्ट में. मैम कौन है ये बोलने वाला? एक मिनट. व्हाट्स योर नेम? राहुल? नो मैम. तो मोसेस? यस. Yes, I identify you now by your voice. Correct. Ma'am, can I explain? Yes, I'm explaining. I just want to answer.
Tanvi Rao says first column expenses are recurring in nature. Tanvi, आगे सब पढ़े लिखे लोग बोल रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये पढ़ा, मीन्स मैम रिपीटिंग इन नेचर, उसका बेनिफिट शॉर्ट टाइम रहता है. राहुल सेज, चलो फर्स्ट कॉलम में जो एक्सपेंसेस है, तन्वी सेज दैट दे आर रिकरिंग इन नेचर. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंसेस आर रिकरिंग इन नेचर? उसका मतलब बताओ. मैम जो बार बार हर साल होता है ना, वो हर साल होता है या हर महीने होता है? हर महीने बार बार होता रहता है ना, वो होता है. कंटिन्यूस होता रहता है. मतलब अगर मैं आई एम अ सैलरीड एम्प्लॉय ऑफ भारत कॉलेज, मुझे एक महीना काम करने पे एक महीने की सैलरी मिलती है, करेक्ट? यस मैम. मतलब एक महीना काम करूंगी सैलरी मिलेगी, दूसरे महीने काम करूंगी दूसरे महीने की सैलरी इनकर होगी, एक्सपेंडिचर होगा. फिर अगर मुझे सैलरी नहीं दिया तो मैं काम करना छोड़ दूंगी, करेक्ट और नॉट? यस मैम. जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो रिकरिंग इन नेचर है. रिकरिंग मींस वो कंटिन्यूसली हमको वो एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ते हैं. वी इनकर दैट एक्सपेंसेस अगेन एंड अगेन. उसका बेनिफिट, जब आप एम्प्लॉय को एक महीने की सैलरी देते हो तो वो एक महीने के लिए काम करता है. सैलरी देना बंद कर दो, काम करना बंद कर देगा. तो उससे जो काम मिलता है वो शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है. उसका बेनिफिट हमको थोड़े पीरियड के लिए ही होता है. मतलब ये जो फर्स्ट कॉलम के एक्सपेंसेस है उसका हम लोग मीनिंग समझते हैं. पहले तो रिकरिंग है, ठीक है, इट इज रिकरिंग इन नेचर. ओके, फर्स्ट थिंग इज दैट ये फर्स्ट कॉलम में जो आइटम है वो रिकरिंग है. फिर उसका बेनिफिट शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए बेनिफिट इज फॉर शॉर्ट पीरियड. ओके, थर्ड थिंग इज कि ये एक्सपेंडिचर बिजनेस रन करने के लिए इनकर होता है. एक्सपेंडिचर इज इनकर टू रन द बिजनेस और मेंटेन द एसेट. ये एक्सपेंडिचर से आपका बिजनेस चलता रहेगा या फिर एसेट मेंटेन रहेंगे. जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आप नहीं भरोगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी काट के चली जाएगी. इलेक्ट्रिसिटी वाले एमएससीबी डिपार्टमेंट विल कम एंड कट योर इलेक्ट्रिसिटी. तो क्या होगा, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा. अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरा टाइम पे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कट गया, आपका काम रुक गया. इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते रहोगे तो बिजनेस प्रॉपरली चलता रहेगा. लोगों को सैलरी देते रहोगे तो प्रॉपरली वो लोग काम करते रहेंगे. अगर आपने सैलरी देना बंद कर दिया, वो लोग स्ट्राइक पे चले जाएंगे. आप रिपेयर्स करोगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करोगे तो आपके एसेट्स वर्किंग कंडीशन में रहेंगे. क्या रहेंगे? वर्किंग कंडीशन में. if you do regular repairs and maintenance, your asset will be in working condition. बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास बाइक कार रहेगी तो आप उसको 3 मंथली 4 मंथली रिपेयर करवाते हो ना, उसकी सर्विसिंग करवाते हो ना. उससे क्या होता है, उससे क्या उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, वो ज्यादा एवरेज देती है? नहीं, उससे वो चलते की कंडीशन में रहती है. कोई बड़ा खर्चा नहीं निकालेगी. रेगुलर रिपेयर्स दोगे, ऑयलिंग करवाते रहोगे तो वो एक अच्छे कंडीशन में रहेगी. तो ये जो फर्स्ट कॉलम के जो एक्सपेंडिचर्स है, इनके फीचर्स जो है, इट इज रिकरिंग इन नेचर. सेकेंड, द बेनिफिट इज फॉर द शॉर्ट पीरियड, थोड़े टाइम के लिए बेनिफिट होता है. थर्ड, इट हेल्प्स इन रनिंग द बिजनेस और मेंटेनिंग द एसेट. अभी रॉयल्टी, जब तक आप रॉयल्टी पे करते रहोगे तब तक आप सेल कर पाओगे. जैसे आपने रॉयल्टी पे करना बंद कर दिया, आपको वो प्रोडक्ट का सेल करने नहीं मिलेगा. So royalty is also recurring in nature. Royalty देखो दो चीजों पे होती है, either on production or on sale. If you are paying royalty, then only you will be able to produce that product. अगर आप रॉयल्टी नहीं पे करोगे, आपका चलता हुआ बिजनेस बंद हो जाएगा. It just helps in running the business. Okay, यहाँ तक क्लियर है? अभय यादव, Yes. अभय, mute yourself. So this is the features of first column. Now what about second column? Second column में सबसे पहला फीचर है कि ये second column के जो आइटम है
दे आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। क्या है? नॉन रिकरिंग, घड़ी घड़ी इनकर नहीं करना पड़ता है, ये एक्सपेंडिचर आपको घड़ी घड़ी नहीं करना पड़ता है। दिस एक्सपेंडिचर्स आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। एग्जाम्पल, परचेज ऑफ मशीनरी, रोज करते हो क्या? आपके घर में टीवी होगा, वॉशिंग मशीन होगा, ऐसे जो भी एसेट्स होंगे दे आर परचेज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आपने घर खरीदा आपके पेरेंट्स ने, थोड़ी हर 15 दिन में नया घर खरीदते हैं या हर 6 महीने में नया घर खरीदते हैं, अनलेस एंड अनटिल आपका बिजनेस एजेंसी का है, रियल स्टेट एजेंट हो आप, तो बात अलग है, देन वो आपका एसेट है ही नहीं, देन इन दैट केस इट इज योर गुड्स। अगर सपोज मेरा बिजनेस है रियल स्टेट परचेज और सेल करने का, तो जो भी मैं फ्लैट्स खरीद रही हूँ और बेच रही हूँ तो वो मेरा गुड्स है, देन इट इज नॉट माय एसेट। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. थिंग इज दैट जो भी हमने सेकेंड कॉलम में लिखा दैट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर, मतलब वो घड़ी घड़ी हमको एक्सपेंसेस इनकर नहीं करना पड़ता है। सेकेंड थिंग, सच एक्सपेंसेस increases the earning capacity of the business, increases earning capacity of the business। मतलब एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा था कि पेट्रोल इंजन इज रिप्लेस्ड बाय सीएनजी। अभी पेट्रोल इंजन अगर होगा तो पेट्रोल ज्यादा लगेगा, खर्चा ज्यादा होगा, पेट्रोल बहुत महंगा है। सीएनजी गैस से आप ज्यादा डिस्टेंस चला सकते हो कम पैसे में, मतलब एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपका खर्चा कम हो जाएगा। पेट्रोल का खर्चा ज्यादा है, सीएनजी का खर्चा कम है, या सीएनजी एवरेज ज्यादा देती है। तो पेट्रोल ड्रिवन इंजन को जब मैंने रिप्लेस किया सीएनजी से, तो मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई, मैं ज्यादा कमाऊंगी, खर्चा कम होगा और मेरी कमाई ज्यादा होगी। Such expenditures are incurred to bring the asset into running condition। अभी मैंने यहाँ पे कहीं पे लिखा था लीगल फीस पेड ऑन एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। ये चीजें जब आप इनकर करते हो तो एक्चुअली आप उस एसेट को यूज कर सकते हो। मैंने मशीनरी तो खरीद ली, ठीक है, लेकिन अगर मैंने उसको इंस्टॉल ही नहीं किया तो मैं यूज कर पाऊंगी क्या एसेट को? तो एनी एक्सपेंडिचर दैट brings your asset into running condition, जिसकी वजह से आप एसेट यूज करने लायक हो जाते हो, such expenditure is also comes under this category। राहुल से ब्रोकरेज, यस, अगर आपने लैंड परचेज करने के लिए ब्रोकरेज पे किया है, ब्रोकरेज ऑन परचेज ऑफ एसेट या लैंड, ब्रोकरेज पेड ऑन purchase of land, building, shares, yes, I was coming on that only, any investment, otherwise I can say that also becomes the part of your irregular। एक ये ब्रोकरेज हम वन टाइम ही पे करते हैं जब हमको लैंड खरीदना होता है, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि लैंड, बिल्डिंग, शेयर्स, इन्वेस्टमेंट, ये चीजें ब्रोकर के बिना खरीदी नहीं जा सकती। यू ऑलवेज नीड अ ब्रोकर टू purchase all these things, and he charges an amount which is a part purchase price of your land, building, share, investment। वो purchase price में automatically add हो जाता है। so यहाँ तक क्लियर है? ये एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग है, ये अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है। जैसे सिनेमा हॉल की सिटिंग कैपेसिटी बढ़ा दी, सिनेमा हॉल में पहले 50 लोग ही बैठ सकते थे, अब 100 लोग बैठ सकते हैं। तो आपने सिटिंग कैपेसिटी अगर सिनेमा हॉल की बढ़ा दी है तो ऑटोमेटिकली अर्निंग्स बढ़ जाएगी, ज्यादा लोग को आप सिनेमा हॉल में बिठा सकते हो। एक्विजिशन मीन्स परचेज, एक्विजिशन का मतलब होता है परचेज। तो
यार अपने आप को प्लीज कीप योरसेल्फ ऑन अनम्यूट। विशाल आपके बैकग्राउंड में बहुत आवाज है। इफ देयर इज नो नॉइज देन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। आपने हैंड रेज किया है। ये एक टाइप का एक्सपेंसेस है। अभी इसकी फोर्थ स्पेशलिटी पे आती हूँ। ये एक टाइप का एक्सपेंसेस है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, और ये सेकेंड टाइप का एक्सपेंडिचर जो है वो बैलेंस शीट को अफेक्ट करता है। दैट अफेक्ट्स बैलेंस शीट, करेक्ट, दैट इम्पैक्ट्स योर बैलेंस शीट। This type of expenditure will impact your balance sheet. ये जो सेकेंड कॉलम है। ये जो फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर है जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अफेक्ट करता है, जो रिकरिंग है, जो बिजनेस मेंटेनेंस के लिए हेल्प करता है, जिसका बेनिफिट शॉर्ट पीरियड के लिए, उस एक्सपेंसेस को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं उसको? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दिस एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये जो सेकेंड कॉलम वाला एक्सपेंडिचर है इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। डिपेंड क्लियर है? आपने स्टार्टिंग में ही लिखा था कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर एक नाम है, उस नाम के अंडर ये सब चीजें आती हैं। सो फर्स्ट कॉलम, और इफ आई से व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इससे आपको डिस्टिंक्शन भी मिल गया इसका। अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस, यू कैन ऑल्सो से कि भाई ये डिफरेंस है। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? यस मैम। एक रन करने के लिए हेल्प करता है, एक एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हेल्प करता है, एक अर्निंग बढ़ाता है तो एक अर्निंग मेंटेन रखता है। दिस एक्सपेंडिचर हेल्प्स इन मेंटेनिंग द अर्निंग ऑफ द बिजनेस, मेंटेनिंग द एसेट और मेंटेनिंग द अर्निंग ऑफ द बिजनेस। So what is revenue expenditure? Any expenditure which is recurring in nature, the benefit of which is for short period, which is incurred to run the business or maintain the asset or maintain the earning of the business, which is shown in profit and loss account, is your revenue expenditure. And what is your capital expenditure? तो पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? नॉन रिकरिंग इन नेचर है। इट इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। Such expenditures are incurred to bring the asset into running condition. It impacts your balance sheet and also earning capacity or efficiency of the business. ठीक है, समझ में आया डिफरेंस क्या है? देखो, इट इज शोन ऑन लाइबिलिटी साइड और बैलेंस शीट ऐसा नहीं है। अगर आप लाइबिलिटी रीपे कर रहे हो, जैसे आपने डिबेंचर्स पे किया या प्रेफरेंशियल्स पे रीपे किया, तो आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। अगर आप एसेट परचेज कर रहे हो तो आपके एसेट साइड में नंबर ऑफ एसेट विल इंक्रीज। सो इट डिपेंड्स के इट डिपेंड्स कि आप एक्सपेंडिचर क्या कर रहे हो। सो एम आई क्लियर? What is capital expenditure and what is revenue expenditure? Is it clear? Yes, You ma'am. can see capital expenditure can either reduce your liability, liability side का amount कम करेगा या asset side का amount increase करेगा। Okay? So I hope so यहाँ तक clear है। Anyone any doubt till here? एक्सपेंडिचर मीन्स व्हाट? चलो, समवन जिसके बैकग्राउंड में आवाज नहीं है ना, वो अनम्यूट करके मुझे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंडिचर? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? Please don't message me, ma'am, it's your lecture, please start. I'll start my lecture. See, when I'm in college, now it happens many a time that
कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यू होता है। आज भी आपका लेक्चर स्टार्ट करने के लिए लेट हुआ बिकॉज द इंटरनेट कनेक्शन वाज नॉट देयर। तो इंटरनेट कनेक्शन चालू करवाया एंड आई गॉट स्टार्टेड योर लेक्चर। चलो बोलो, जल्दी बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंडिचर? जल्दी बोलो, लास्ट 5 मिनट से हमको ये रिवाइज करके क्लोज करना है। व्हाट इज एक्सपेंडिचर? अगर सिंपल वर्ड्स में मुझे बोलना है तो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? कैश का आना या जाना? जाना। Investing. Outflow of cash. Any outflow of cash? Yes, Rahul, बोलो। मीन्स एक्सपेंडिचर मीन्स पेमेंट करना जिसका बेनिफिट ले चुके हैं, या वो हाँ। शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म में हो। शॉर्ट टर्म Correct. में मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाएगा और लॉन्ग टर्म में कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेरी गुड राहुल, मेरे को कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा अभी। So Rahul says any outflow of cash, any payment of cash means expenditure. ठीक है? Some expenditures are recurring in nature. कुछ expenditure होते हैं जो recurring होते हैं nature में, और कुछ expenditures होते हैं जो non recurring होते हैं। जो expenditure recurring in nature होते हैं उन वो किस लिए help करते हैं? Their benefit is for the short period. They helps in running the business or maintaining the asset or maintaining the earnings of the business. They affect profit and loss account. What is capital expenditure? Capital expenditure are those expenditures which are non-recurring in nature. The benefit of which is for a long time. ये मैंने लिखा नहीं ना, the benefit of which is for a very long time. ये एक्सपेंडिचर इनकर करने के बाद इसका बेनिफिट क्या होता है? लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ओके It helps in acquisition of asset or payment of liability. Normally capital expenditure आपको help करेगा acquisition of liability में या acquisition of asset में या payment of liability में. It increases the efficiency of the business. It increases efficiency of business or earning of the business. It also helps in bringing the asset into the working condition या फिर in running condition, and it impacts your balance sheet. उसका effect कहाँ आता है? Balance sheet में. Is it clear? Expenditure all done? Expenditure clear है? Can I give you some examples? You'll answer. कुछ questions पूछो, आप answer करोगे? आंसर आप लोगों को स्ट्रिक्टली चैट बॉक्स में डालना है। म्यूटिंग ऑल। और चैट बॉक्स में जब आंसर डालते हो ना तो रिमेंबर दैट क्या आपको सिर्फ मुझे रिप्लाई करना है, टू मी। ओके अभी आप लोग अपने आप को अनम्यूट नहीं कर सकते। जब आप आंसर करते हो ना तो टू एवरीवन मत करो, टू मी करो। ओके आई एम पुटिंग वन बाय वन क्वेश्चंस टू यू। ठीक है, सोच समझ के आंसर करना, वेदर इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर or whether it is a capital expenditure. Whitewash of a building. Whitewash of a building. Whitewash of a building. Yes. Whitewash of a building. साथ में एक्सपेंडिचर लिखना कंपलसरी है। स्टिल एनीवन राइटिंग आंसर? मुझे खाली 5 आंसर्स आए हैं। What about others? Others are sleeping or what? Very good, Vishal. आज आपका फर्स्ट डे, but you are very responsive. Very nice. What about others? सो रहे हो क्या बाकी लोग? सोच समझ के आंसर डालते जाओ। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। अभय, अभिषेक, पता नहीं इतने सारे स्टूडेंट्स है बट नो वन वांट्स टू आंसर। आई डोंट नो। आदित्य सोनावने, ये लोगों को कल से मैं लेक्चर में अंदर ही नहीं लूंगी। भावना पवार, डेरिल डिसूजा,
दीपेन आंसर करो। देवांग, भूपी पहले आंसर देते थे देवांग, आजकल क्या हो गया है? देवांग यू हैव स्टॉप्ड आंसर। I'll answer, don't worry राहुल। मेरे को रेवेन्यू या कैपिटल एक्सपेंडिचर नंदिनी आपको आंसर देना है। लार्सन डिसूजा, मोसेस ने आंसर दिया है। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? हर्ष, हर्ष पहले आप भी आंसर देते थे, आजकल आपने भी आंसर देना बंद कर दिया।